सुदीप बंदोपाध्याय जी, सुदीप बंदोपाध्याय। Madam, I rise to speak on the Muslim Women Protection of Rights and Marriage Bill 2018. Madam, when in August 2017, Supreme Court gave their judgment by pronouncing triple talaq as null and void, we took it as granted that this issue will not be reflected further. It was discussed in the Parliament on the floor of the House, and while on its way, it has come back again with some amendments also. What we said at the very beginning, that if this bill could have been sent once time more to the Joint Select Committee, situation could have been different. Because what I guess, one part of the bill is being extended support by all the political parties where the rights of women are concerned, which you also initiated from the chair at the beginning of the discussion. So, Madam, as we are all the firm believers of the principles of secularism, communal harmony and unity of the country, and so when any bill connected with the interest, with the protection of a major section of this country, we cannot remain mum. All political parties have their own stand and they should clarify accordingly their own views and version. Madam, we are always in favor of the protection of the women, may it be married women, may it be unmarried women also. Here in Parliament today, the bill is moved to protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing talaq by their husbands. Madam, it is no doubt, instant talaq is completely viewed as sinful, improper by a large section of the Muslims community itself. A views big sensible Muslim sections, they consider it as a sinful step which is not acceptable at all. And I think this thought is a positive direction. So there cannot be no dispute about the need to protect married Muslim women against such type of practice of divorce. And I think this part of the bill is beyond debate. Every person, every political party had extended their support. But divorce by triple talaq also, according to us, threatening the social security and well-being of a society as a whole. Madam, we should not forget to protect the interest of the women, to highlight the womanhood as a whole in the country. We are also trying to find out that let our Parliament pass 33% of reservation of women at the lower house, and also in the state legislature assemblies for women. Madam, I should draw the attention of the House. In our party, Trinamool Congress, we are 34 MPs in Lok Sabha, out of which 12 MPs are female, women. That is 35%, more than 33%, and this is the view of Mamata Banerjee, our leader of the party. She is always there to protect the interest of the women, is in a mood to uplift the interest and to protect the interest of the people, womanhood of this country. Madam,
So we are here to protect the married Muslim women who are really facing difficulties with the influence of the triple talaq pronouncement, and then they are being divorced. So this part when government introduces, we have nothing to say. And Ravi Shankar ji, this portion, I think no political party will say a single word or will object. On the other hand, we strongly oppose the imprisonment of 3 years for those husbands with some reasons. One, this is excessive, this is arbitrary and irrational according to us. We thoroughly oppose this criminalization provision. Madam, why we are saying so? Why we are opposing this portion? I want to clarify to Ravi Shankar Prasad ji. Suppose, Ravi Shankar ji, those husbands who are going to jail, what will happen to those women regarding their maintenance? Because the question of giving maintenance by the husband will be moot if the person is in jail. He will find no scope and opportunity to provide her financial support. There can be little question of maintenance as the person would not be in a position to earn money. The only workmen who can be truly benefited under this law are those whose husbands have significant estates and income that would permit the payment of maintenance while the husband is not working. So दोनों तरफ का हस्बैंड, एक तरफ का हस्बैंड का कोई इनकम नहीं होता है, वो जेल में चले गए, कैसे भेजेंगे रुपए? और एक तरह है कि जिसका प्रॉपर्टी है, एस्टेट्स है, वो लोग उनका एस्टेट से वो औरत के पास, उनका पत्नी का पास, पहले पत्नी के पास वो सहायता चले जाने का एक थ्रू चैनल हो सकते हैं. So this is a problem. So if this provision of this imprisonment persists, then the said bill will lead to injustice and make a woman's life deteriorated further. तो हम लोग सोचते हैं कि ये बिल में ये पोर्शन भी रह जाए तो woman's life will deteriorate further. It will be injustice and sufferings of the divorced women will suffer and justice will be denied to them. Madam, so we propose to send this bill to the Joint Select Committee. We think that this is not a battle of war field. So far this bill is concerned, it has a humanitarian side very broadly. So we hope that government should rise to the occasion. In brief, our proposals are that we are firmly standing behind the Muslim women rights, number one. And number two, we are totally against provision of criminalization. And considering all these sides, I think that Honorable Minister will adopt such a bill which will satisfy each one of us. Thank you, Madam. Mukhtar Abbas Naqvi ji. अध्यक्ष जी, आज का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है. कभी कभी लम्हों की खता सदियों की सजा बन जाती है. लगभग 3 दशकों पहले इसी सदन में शाहबानो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने कानून बनाया था. और आज मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी को बधाई देता हूं
कि सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित जो निर्णय है उसको प्रभावी बनाने के लिए आप यहां पर कानून बना लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण घटना और जानकारी से अपनी बात शुरू करूंगा। I met some of the Muslim women, Muslim parent shall communicate the house a very interesting reaction of the some poor families. One man in Bihar told me, I have got 6 daughters. One is married, but God forbid she does not get talaq. But if she is divorced, she come back to me. I am already feeding it. Difficult to maintain these 5 daughters. They are yet to get married. If my married daughter after talaq come back to me, tell me how I will be able to look after her. Even with the best desire, I am prepared to die so that my daughter can be protected. But he told me with a tear in his eyes, even if I shed my blood, I will not be able to protect my daughter because I am living in such a manner that even I am not able to make both ends meet. And the result of that, it is difficult for me to maintain her. According to a law that you are formulating, she will be go to the board. Work board means my friend happened to be a Muslim. She know the status of the work board. What will happen? Such a woman will be known. Lastly, I may quote a very interesting story, which is full of the thoughts. You can check it with the Prime Minister. Muslim women went to a honorable Prime Minister with a tear in their eyes. One Muslim girl said, Mr. Prime Minister, for the 3rd time I have been offered tilak. And if you are talking in a term of the going to a 21st century, why do you have throw a ladies like us back to a 6th century? Don't send us to a tender mercy of these peoples. सर, ये बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे। 5 मई 1986 को श्री मधु दंडवते जी ने इसी सदन के अंदर कहा था। मैंने जो बात कही कि जो लम्हों की खता सदियों की सजा बनती है, उस समय इस सदन में बहुत ही गंभीरता के साथ चर्चा हुई थी। और न केवल ये मधु दंडवते जी बल्कि बहुत से ऐसे उस समय माननीय सदस्य थे जिन्होंने कि इस सामाजिक कुरीति और बुराई के खात्मे के लिए सरकार से मांग की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कठमुल्लाओं के दबाव में उस समय की सरकार कुछ फैनेटिक फोर्सेस की दबाव में, कठमुल्ला मतलब फैनेटिक्स नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। कुछ सुन लो, फिर से सुनिए। आई एम रिपीटिंग कुछ कठमुल्लाओं के दबाव में उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए कानून बनाया। सर, अभी एक बात चल रही थी कि ये जो कानून बन रहा है, इस कानून से जो है वो बनने के बाद जो है वो उन मर्दों का क्या होगा, गुनाहगारों का क्या होगा। जब हमने कठमुल्ला मीन्स की फैनेटिक्स सम फैनेटिक्स। अच्छा, हो गया। चलिए हम दादा हमारा अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है और हिंदी में जो है वो ठीक है, तो इसलिए हम ये उर्दू भी है। तो अध्यक्ष महोदय,
अभी ये बात हो रही थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर से बात की गई क्या? क्या स्टेक होल्डर से उनसे राय ली गई क्या? जिस वक्त अभी रिसेंटली निर्भया का केस हुआ था, निर्भया के केस के समय एक कड़ी से कड़े कानून के तहत, कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कानून बनना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों सदनों में एक स्वर से आवाज उठी। उस वक्त क्या ये बात, अब उससे उस कानून से प्रभावित कौन लोग हैं? वो गुनाहगार जो गुनाहगार की इस तरह के गुनाहों को करने के बाद सीना तान करके घूमते थे। क्या उस समय भी कुछ लोग ये बात कह सकते कि स्टेक होल्डर से क्यों नहीं आपने बात की, इतना जगह, इतने कड़ा कानून क्यों आप बना रहे हैं? नहीं, उस वक्त भी एक स्वर से, एक आवाज से दोनों सदनों ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया। और मैं दोनों सदनों को नतमस्तक होकर के सलाम करता हूं कि वो लोग, वो गुनाहगार जो गुनाहगार की जघन्य अपराध करते थे और घूमते रहते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हुई। अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन में 15 मई 1986 को शाहबानो केस के बाद चर्चा हुई, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत ही रचनात्मक चर्चा हुई। तमाम काबिल माननीय सदस्य उस समय थे सदन में, जिन्होंने कि उस वक्त भी जोर दिया था कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि वो कुछ लोगों के दबाव में कुछ लोगों के दबाव में जो है वो कानून नहीं बनने दिया गया और उन लम्हों की खता की सदियों सजा देश ने भुगती है, और खासतौर से उन महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने, जो कि आज भी पीड़ित हैं। तमाम इस्लामिक देश हैं जिसके बारे में कि अभी बताया गया, मैं बहुत कोई इस्लाम का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये मुद्दा इस्लाम से या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये शुद्ध रूप से सामाजिक कुरीति और कुप्रथा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से जिस वक्त सती प्रथा के खात्मे की बात हुई थी और पूरा देश चाहता था कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए और सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक मुहिम चली, उस वक्त भी कुछ लोगों ने यह बात कही थी कि नहीं, सती प्रथा जो है वो तो एक धर्म का हिस्सा है, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन वो खत्म हुई। बाल विवाह के बारे में भी जब इस वक्त आवाज उठी कि बाल विवाह की प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए, ये कुप्रथा भी है, कुरीतियां भी हैं, उस वक्त जो है वो देश ने एकजुट होकर के बाल विवाह के इस कुप्रथा को खत्म किया। उस वक्त भी कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि साहब ये तो मजहब से जुड़ा हुआ है, ये धर्म से जुड़ा हुआ है, इसमें कैसे आप दखल अंदाजी कर सकते हैं, इसमें कैसे आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन वो खत्म हुआ और इस देश की हमारी जो व्यवस्था है उसने ही खत्म किया, हमारे देश के लोगों ने खत्म किया, हमारे देश की जो मजबूत इच्छा शक्ति है उसकी वजह से ये खत्म हुआ। आज फिर कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि जिसकी वजह से हम उसका मुखालफत कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। कभी कभी मैं अभी सुन रहा था हमारे बहुत से माननीय सदस्य, ऐसा लग रहा था कि जैसे मजलूम के साथ नहीं बल्कि मुजरिम के साथ खड़े हों, और उनको चिंता हो रही थी कि जो जुर्म कर लेगा, जो इस तरह का अपराध कर लेगा, उसको जेल क्यों भेज दोगे भाई, उसको जो है वो 3 साल की जेल क्यों कर दोगे, उसको बेलेबल क्यों कर दोगे, नॉन बेलेबल क्यों कर दोगे। ये सारी चीजें इस पे जो है वो टेक्निकल चर्चाएं हो रही थी, उसको आप रविशंकर जी बताएंगे, रविशंकर जी बताएंगे। तो भाई ये बताइए, हकीकत खटके साहब हकीकत है, आप जो है कत्ल करेंगे और कहेंगे जी कत्ल कर दिया तो हमें जो है वो सजा क्यों दोगे तुम उम्र भर की। आप जो है वो बलात्कार करेंगे और आपके खिलाफ जो है वो जो कानून बने हुए हैं कहेंगे जी सजा क्यों दोगे। आप डकैती डालेंगे, आप आतंकवाद करेंगे, आप चोरी करेंगे और उसको कहेंगे जी ये कानून जो बना है बड़ा तगड़ा है, अगर इसका पति जो है जेल चला जाएगा तो उसकी पत्नी क्या करेगी। अरे भाई आप जुर्म करो ही क्योंकि जेल जाना पड़े आपको। हम तो हमारा तो हम जो है हम किसी आई एम नॉट रीडिंग सर। चलो मैडम
ये आपकी न, आप जो सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सी उधर से तालियां भी बहुत बज रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं मैडम आपके माध्यम से कि क्या हिंदू धर्म में ऐसा है कि 3 साल जेल भेजने का किसी हस्बैंड को? क्या क्रिश्चियन धर्म में है? वहाँ इस प्रकार की प्रथा ही नहीं है। नहीं खटके साहब, वहाँ ऐसी आपके यहाँ ट्रिपल तलाक है क्या? हिंदू धर्म में कौन सा ट्रिपल तलाक है? ये कौन सा हिंदू धर्म लेके आप बैठे हुए हैं? आप जरा खटके साहब बताइए, ये कौन सा हिंदू धर्म पैदा हो गया, सेकुलर हिंदू धर्म, जिसमें ट्रिपल तलाक पैदा हो गया है? तो जब उसमें ट्रिपल तलाक नहीं कौन सी प्रथा? ऐसी प्रथा नहीं है। बेटी अध्यक्ष महोदय, उसमें है ही नहीं है सब। आप बेटी अध्यक्ष महोदय, देखिए, जो लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, इस्लाम से भी जोड़ रहे हैं, मैं उनको भी हम थोड़ी सी जानकारी के लिए, वैसे बहुत बार इस हाउस में इस पर चर्चा हो चुकी है। वो तमाम इस्लामिक देश जो इस्लामिक देश की इस्लामिक मूल्यों, इस्लामिक मान्यताओं को मानते हैं, उन तमाम इस्लामिक देशों ने दशकों पहले इस 3 तलाक की कुप्रथा को, कुरीति को खत्म कर दिया। 1929 में सूडान में 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया। 1956 में पाकिस्तान, आज़ादी के बाद फौरन पाकिस्तान ने 3 तलाक को जो है वो गैर कानूनी भी घोषित किया, अपराध भी घोषित किया। 1972 में बांग्लादेश ने इसको घोषित किया। 1959 में इराक ने इसमें 3 तलाक को ख़त्म किया। सीरिया ने 1953 में 3 तलाक को ख़त्म किया। मलेशिया में 1969 में इस पर रोक लगाई। इसके अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनई, मोरक्को, कतर, यूएई जैसे इस्लामिक देशों ने 3 तलाक को गैर कानूनी ही नहीं बल्कि अपराध घोषित किया। अब भाई क्या वो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं? या आपका कौन सा सेकुलरिज्म का नया फंडा पैदा हो गया है कि साहब आप कहेंगे जी फिर हम जो है वो हिंदुओं में क्यों नहीं है? अरे जब हिंदुओं में तलाक ही नहीं है, 3 तलाक, खटके साहब आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो आप उसका तर्क भी दीजिए, तो कुतर्कों से जुड़ा हुआ मत दीजिए। इसलिए मैं मानता हूं, देखिए, मैं एक बहुत पॉजिटिव बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस को अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं पॉजिटिव बात करना चाहता हूं कि जिस समय से इस सरकार ने 3 तलाक के बिल पर बिल्कुल राज्यसभा में लाई, लोकसभा में लाई, पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने पास करने में मदद की, और लोकसभा से और राज्यसभा तक का 100 कदम के फासले में इनके पैर कैसे लड़खड़ा गए ये हम नहीं जानते। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है अध्यक्ष महोदय, पॉजिटिव चीज ये है कि एक पॉजिटिव डिस्कशन हुआ। उलेमा भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसको बहुत पॉजिटिव ले रहा है। उसने भी ये कहा कि साहब ये तो 3 तलाक का एक अपराध है, इसको खत्म होना चाहिए। तमाम उलमाओं ने कहा कि 3 तलाक अपराध है, लेकिन नहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद भी अभी रविशंकर जी बता रहे थे कि कल भी हुआ, परसों भी हुआ, आज भी हुआ, लगातार चल रहा है। तो उसके लिए कुछ कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब क्या उसके लिए तर्क दिया जा रहा है? अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो कानून बनाने की क्या जरूरत है? तो क्या कत्ल कानूनी है? क्या आतंकवाद कानूनी है, संवैधानिक है? क्या जितने भी अपराध हैं, रेप, क्या ये कानूनी है? ये सब गैर कानूनी और असंवैधानिक है, लेकिन इसके लिए कानून है ना। अगर उसके लिए कानून है खटसे साहब, तो फिर इस जघन्य अपराध के लिए कानून बनना चाहिए, और किसी को विक्टिमाइज करने के लिए यह कानून नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कानून है, उनकी संवैधानिक सुरक्षा के लिए यह कानून है। किसी को विक्टिमाइज करने के लिए नहीं है, किसी को जो है वो परेशान करने के लिए नहीं है। यह सीधी मकसद और मंशा हमारी है, और अगर उनको लगता है कि इस मकसद और मंशा पे जो है वो सवालिया निशान है, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं, जो आपको, मैं वो
यस, मेनका जी यहाँ बैठे हैं मैडम। हाँ, शी हैड फाइल्ड ए केस, और रविशंकर जी को याद होगा, हमारे काबिल आइन मंत्री जी को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका व्याख्या इनके केस में हुआ है, एंड इट इज ए वेरी वाइडली रेफर्ड केस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर हमारे काबिल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में कुछ बताएं। ये जो हो रहा है, जो प्रस्ताव आया है इस बिल के अंदर, वेदर इट टैकल्स द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और नॉट, दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड, एंड दैट हैज बीन वेरी vividly pronounced in Maneka Gandhi's case. Supreme Court has pronounced, a constitutional bench of 7 judges have pronounced due process of law. Yes, yes, madam. मैं जो उसका मंत्री अपने मेहताब साहब ने कहा है, उसका जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में हमारे लॉ मिनिस्टर बता देंगे, आपको पूरी तरह से ड्यूली बता देंगे। अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, सिर्फ 2-3 चीजें कह के। दो तीन चीजें खत्म करके कहूंगा। देखिए, लगातार जो अभी सुष्मिता जी ने भी एक बात कही कि शाहबानो केस के बाद भी लगातार मुस्लिम महिलाओं के साथ जुल्म होता रहा, अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा। सायरा बानो के केस के बाद भी लगातार मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा, जुल्म होता रहा। और इस सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी को कानून इसीलिए लाना पड़ा कि इस चीजों के बावजूद, इतने बड़े बहस के बावजूद, जागरूकता के बावजूद भी अपराध हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और उन गुनाहगारों के दिल में डर पैदा हो। वो जो गुनाहगार बेखौफ होकर के कभी कभी जो है वो कुछ फतवों का सहारा ले लेते हैं। आजकल तो फतवों की प्रॉब्लम क्या है, फतवे जो है वो जैसे सब्जी बिकती है उस पे, ठेले पे, उसी तरह से कुछ लोगों ने सब्जी फतवों की दुकानें खोल रखी हैं। वो लेकर के गली गली में बाय वन फ्री क्या है, एक लो एक की छूट, दो गेट 2। तो ये जो एक पूरा के पूरा है, इन जो फतवों की दुकानें लोगों ने खोल रखी हैं, मैं देखता रहता हूँ कि साहब वो बारात में वो जो औरत नहीं जा सकती, महिला नहीं जा सकती, जो है वो पुरुषों के साथ खाना नहीं खा सकती, वो जो है वो सड़क पे जो है वो घूम नहीं सकती, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकती। ये क्या है? ये देश जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और शरीयत में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। शरीयत में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती। शरीयत में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को जो है वो उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इसलिए अब एक के बाद एक तमाम ये छोटे छोटे, मैं आपको ये सारे फतवे लिखे हुए हैं जिसमें कि वो कह दिया जाता है कि साहब ये आई मेरे पास और हमने जो है इनको तलाक जो है इनका हो गया, सिर्फ वर्बल कह दिया, या किसी जो है वो उस दुकान पे पहुंच गए वहां कह दिया और उसके बाद वो तलाक हो गया। अध्यक्ष महोदया, आज जो है वो एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं ऐतिहासिक दिन इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपनी बात को इस ऐतिहासिक दिन के इसलिए मैं शेर से कहना चाहूंगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न कभी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरे जुनू का, अभी पूरा सुन लो पूरा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। तो हम जो है वो आज एकजुट होकर के इस ऐतिहासिक मौके का हमें जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। हमने जो उस लम्हों में खता की थी और सदियों हमने उस सजा को भुगता है, उस लम्हों की खता को हमें ठीक करने का एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनके पास प्रचंड बहुमत था,
वो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला बदल सकते थे, वो कुछ भी बदल सकते थे। हम तो जो है वो सबको साथ लेकर के, सारे लोगों को आपने सुझाव दिए, हमारे लॉ मिनिस्टर ने उन तमाम सुझावों को जो भी उसमें हित में है, देश के हित में है, संविधान के हित में है, कानून के हित में है, न्याय के हित में है, उसके तहत उसको किया और वो लॉ मिनिस्टर बताएंगे। अब एक ही बात कही जाती थी कि साहब आपने नॉन अवेलेबल कर दिया है इस ऑफेंस को, और जो है नहीं अब हो गया ना तो उसके बाद कहते हैं कि साहब अब वो जेल में चला जाएगा हस्बैंड, तो फिर वो क्या करेगा, कैसे अपने पत्नी को, परिवार को देखेगा? पत्नी को कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, वो भी प्रावधान किए हैं जिसे कि लॉ मिनिस्टर साहब बताएंगे। मैं सिर्फ अपनी बात, क्योंकि अभी हमारी मीनाक्षी लेखी जी ने बहुत विस्तार से कुरान और हदीस के बारे में भी बताया और तमाम ऐसे पहलुओं के बारे में बताया जो कि सही मायनों में इस ज़मीन की हकीकत और सच्चाई है। हमें जो है वो इस सुधार का, ये जो एक रिफॉर्म का की एक लड़ाई है, इस लड़ाई में हमें मजहब, क्षेत्र, राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठना होगा और हमें यह सोचना नहीं होगा कि साहब इसको कर देंगे तो इसमें कौन सा नाराज हो जाएगा, कौन सा खुश हो जाएगा। ये नाराजगी और खुशी का सवाल नहीं है। क्या हम सब नहीं चाहते कि हमें मुस्लिम महिलाओं को उनका संवैधानिक हक और सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए? और जब हम चाहते हैं इस बात को, तो अगर हम इसमें कोई इफ एंड बट करेंगे, इस बिल को पास करने में कहेंगे कि साहब सेलेक्ट कमेटी में डाल दो, स्टैंडिंग कमेटी भी डाल दो, तो हम जो है वो कहीं ना कहीं ईमानदारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी माननीय सदस्यों से कि इस ऐतिहासिक बिल को, इस महत्वपूर्ण बिल को आप पास करिए। ये आप देश के हित में होगा, मुस्लिम महिलाओं के हित में होगा और उनको जो देश संवैधानिक अधिकार देता है, उन संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा देने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविंद्र कुमार जैना। Thank you, Speaker Madam, for giving me an opportunity to speak on the bill. Speaker Madam, I am the 8th speaker in this bill, and as you can see that most men have spoken for the rights of women than women. I would urge upon the Honorable Minister, I would like to remind you of a commitment which your government has made to the joint session of Parliament through a presidential address and to the nation, that you will bring in 33% reservation for the women. That was in 2014. Close to 5 years are getting over. If you would have fulfilled your commitment to bring in 33% reservation for the women, possibly going forward, more women would have been speaking for their rights than men. I would urge upon the Honorable Deputy Speaker, sir, the Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, has passed an unanimous resolution in Odisha Assembly for 33% reservation in Assembly and Parliament. I would urge upon you, sir, to take the lead and let this House pass an unanimous resolution to have 33% reservation for women, so that more women can speak for the rights of women than men speaking for them. Having said that, this triple talaq bill is being brought in the House, brought in the Parliament, pursuant to a Supreme Court judgment, wherein the Supreme Court has requested Parliament to frame a law. I will just quote one line which is contained in 199 para of the Supreme Court judgment. Quote, "We would therefore implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance." The Supreme Court has said it is a paramount importance. Now let us see to what an extent this bill contains